Welcome to all of you in this lecture where we are going to discuss the current affair news related to the current Saudi and Iran deal. So this particular news was seen in the last week, and most of the commentators has been completely shocked about this development. And hence, in this lecture, we'll try to understand what exactly has changed after this deal and what has been the agreement and why this is someone calling it as an historic agreement. फ्रॉम ऑल दीज पर्सपेक्टिव्स ये पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से ये जो राइवलरी रही है आपकी सऊदी और ईरान की, ये कोई नई राइवलरी नहीं है. इट हैज बीन सेंचुरी ओल्ड सिंस द मिडिएवल टाइम. तो हम लोग उसको बेसिक सिनॉप्सिस की तरह विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक हिस्ट्री about why the particular conflict started at the first place and how this conflict has evolved through different time period and why this particular agreement has been in that context considered to be a landmark agreement or to be called so-called a landmark agreement, right? So first of all we'll try to understand, right, this particular thing. You can see that. So this is the headline which has been published by the Wall Street Journal, and it talks about the China broker deal between Iran, Saudi Arabia marks a new Middle East. So this is a very again important term, a new Middle East. You already know that Middle East एक इतना important region है, both strategically, both economically and both geographically. वो region का एक अलग ही महत्व है, and that's why वो region हमेशा कभी ना कभी आपके news में रहता है. आप देख लो आफ्टर इंडिपेंडेंस और आफ्टर द 1945, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट पर्टिकुलर एरिया हैज बीन इन न्यूज बिकॉज ऑफ इट्स ऑयल. और वहां पे भी काफी ज्यादा कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स चलती थी और वहां पे यूएस का काफी इन्फ्लुएंस था. साथ ही साथ अब धीरे धीरे वहां पे चाइना की इन्फ्लुएंस भी बढ़ रही है. तो जितने भी वहां पे एक तरीके के जियो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट्स थे, ऑल दोज आर ब्रेकिंग अवे एंड न्यू जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स आर टेकिंग अवे, एंड दैट्स व्हाई द वॉल स्ट्रीट जर्नल कॉल्स इट as a new Middle East. So first of all, we'll try to understand what was the old Middle East, and then we'll try to understand how the old Middle East has been changed and we are moving towards a new Middle East. तो उसमें जाने के पहले थोड़ा सा we'll try to understand the basics about this whole conflict and what are the roots of this conflict between Saudi Arabia and Iran. तो उसको पहले जब तक समझेंगे नहीं हम लोग कि ये rivalry है क्यों, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है और ये राइवलरी कब से चली आ रही है, तब तक हम लोग ये पूरा जो आज का करंट अफेयर्स है इसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं. इसीलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले विल टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस राइवलरी हैज इमर्ज्ड. सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्किज्म इन इस्लाम. स्किज्म का मतलब व्हाई दिस पर्टिकुलर डिवीजन इन इस्लाम हैज हैपेंड. आपको पता है कि इस्लाम एज अ सेक्ट में दो प्रॉपर डिविजन्स हैं, एक है आपको शिया मुस्लिम्स और एक है आपके सुन्नी मुस्लिम्स. तो इसका डिवीजन ये क्यों है, why there's a different group known as Shia and why there's a different group known as Sunni. So इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं. तो सबसे पहले Prophet Muhammad died in 632. He died without appointing a successor to lead Muslim community. So when he died, he did not appointed कि which person will be leading him. और यही सबसे important जड़ बना. This was the basic problem why there was a division taking place. Some people said that this person will be successor, some people said that this person will be successor, और उसी पॉइंट पे डिफरेंस के लिए आपके एक सेक्ट शिया बना और दूसरा सेक्ट आपका सूनी बना, right? So this triggered a debate over the succession split in the community. Now, so सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सुन्नी सेक्ट इनका क्या मानना है. इनके हिसाब से who should have been the successor of Prophet Muhammad. तो सुन्नी का बेसिक लॉजिक क्या है, सुन्नी मुस्लिम्स का, they are opposed to political succession based on Muhammad's bloodline. मतलब they don't want a person who belongs to the Muhammad's bloodline to be a successor. Bloodline का मतलब कोई खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए. For example, I cannot appoint my brother as a successor. I cannot appoint my son-in-law as a successor. मतलब खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए. उसके अलावा a person should be appointed as a successor of Prophet Muhammad. So Prophet's successor should be determined by consensus. आपस में बातचीत करके we have to decide who will be the successor of Prophet Muhammad and successively elect three of his most trusted companions, Abu Bakr, Umar and Uthman. So ये तीनों को सुन्नी इस्लाम मानते हैं कि these persons
were the right successors of the Prophet Muhammad because they did not have any relation, any blood relation with Prophet Muhammad, and these persons have been selected by the consensus among the Muslim scholars, Muslim people at that point of time. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो आपको चीज समझना है कि सुन्नी मुस्लिम्स किस बात पे डिफर करते हैं, तो इनका सबसे मुख्य डिफरेंस क्या है कि दे डू नॉट वांट अ पर्सन having a blood relation with Prophet Muhammad to become the successor, point A, and point B, they want the successor to be elected by consensus. ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है. इसके हिसाब से इनका सक्सेसर लाइन जो है अबू बकर है, उमर है एंड उस्मान है एज द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. हम लोग देखेंगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ शियास इन द नेक्स्ट स्लाइड. फॉर सुन्नीज द अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन कुरान एंड द ट्रेडिशंस ऑफ मोहम्मद. ठीक है, कुरान जो आपको होली टेक्स्ट है इस्लाम कम्युनिटी का, तो उनके ऊपर ये लोग अपना पूरा लॉजिक को बेस करते हैं. सुन्नी रिलीजियस स्कॉलर्स हु आर कॉन्स्ट्रेन्ड बाय लीगल प्रेसिडेंट्स exert far less authority over their followers than the Shia counterparts. ये हम लोग अभी देखेंगे. एक और बहुत बड़ा डिफरेंस, जैसे आपको पता होगा अगर आप ईरान को देखते हो तो ईरान में आपके पास एक रिलीजियस लीडर जिसको कहते हैं हम लोग आयतुल्ला खमीनी. क्योंकि ईरान का जो आपको पॉलिटिकल सेटअप है, बिकॉज ईरान में आपका शिया मुस्लिम ज्यादा है, ईरान में आपका शिया डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, तो जो शिया डोमिनेटेड पॉपुलेशन होता है उनका जो अथॉरिटी है, उनका जो बेसिस है अथॉरिटी का, वो काफी अलग है एज कंपेयर टू जिन एरिया में जहां पे सुन्नी मुस्लिम रहते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में. तो सऊदी अरेबिया में जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, मतलब सऊदी अरेबिया में बेसिकली क्या है कि दे फॉलो अ डिवीजन कि पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल अथॉरिटी शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजियस अथॉरिटी. मतलब जो रिलीजियस लीडर है दैट पर्सन कैन नॉट बी द पॉलिटिकल लीडर ऑल्सो. बट जहां पे शिया मुस्लिम्स हैं वहां पे ये डिवीजन नहीं फॉलो किया जाता है, बिकॉज उनके हिसाब से द पर्सन हु इज लीडिंग यू, दैट पर्सन शुड बी ऑफ समवन बिलोंगिंग टू द गॉड. ठीक है, वो हम लोग देखते हैं इसके जस्ट बाद. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आपका सुन्नी मुस्लिम के बारे में क्या है. नेक्स्ट कम, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द शिया मुस्लिम. तो शिया मुस्लिम का देखो, दे बिलीव दैट अली एंड हिज डिसेंडेंट्स आर द पार्ट ऑफ डिवाइन ऑर्डर. तो इनके हिसाब से सक्सेसर कौन है? अली. एंड हु इज अली? अली इज द प्रोफेट्स फर्स्ट कजन एंड क्लोजेस्ट मेल ब्लड रिलेटिव. सो सी दिस इज द डिफरेंस. यही डिफरेंस है आपका यहां पे कि दीज पर्संस फॉलो द सक्सेशन लाइन ऑन द blood relationship, unlike the Sunni Muslims. He was also married to Fatima, Muhammad's youngest daughter. देख रहे हो, खून का रिश्ता है यहां पे आपका इन दोनों के पास. For these and other reasons, Shiites believe that Ali was uniquely qualified to lead. So इनके हिसाब से Ali was the right successor of the Prophet Muhammad because he belonged to that blood succession, blood relationship का जो succession था, उसके हिसाब से Ali was the right candidate to lead after Prophet Muhammad. Shias believe that God always provides a guide. This is very important point because इसी को हम लोग ईरान के कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे. Shias believe that God always provides a guide. First the imam. इमाम का मतलब जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, जो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, उनको इमाम कहा जाता है. And then ayatollahs और द एक्सपीरियंस शिया स्कॉलर्स. तो यही आपको आयतुल्ला अल खमीनी के बारे में हम लोग देखेंगे, जो ईरान के रिलीजियस लीडर्स हैं. तो शिया का यही बात है. सुन्नी में जो पॉलिटिकल लीडर, जैसे आपको सऊदी अरेबिया का जो लीडर है मोहम्मद बिन सलमान, सो दैट पर्सन हैज अ वेरी लिमिटेड अथॉरिटी अनलाइक द शिया काउंटरपार्ट. बिकॉज शिया जो डोमिनेटेड एरिया है ईरान, वहां पे ये कहा जाता है कि जो भी पर्सन हमें लीड कर रहा है दैट पर्सन शुड बी एक्सपीरियंस्ड शिया स्कॉलर्स. यहां पे जो आपके पास एक डिवीजन है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, और सुन्नी डोमिनेटेड एरियाज में दिस पर्टिकुलर डिवीजन इज फॉलोड. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस. तो ये पहले आपको बेसिक कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बात करना था बिटवीन शिया एंड सुन्नी. सो लेट मी गिव अ क्विक रिकैप. सुन्नी का मतलब those who believe that the succession should not be someone belonging to the should not have the blood relationship with Prophet Muhammad, and that person should be selected by consensus. और शिया में क्या है कि वो फॉलो करते हैं ब्लड रिलेशनशिप, और इसीलिए इनके हिसाब से अली वाज द राइट कैंडिडेट टू लीड आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद. सेकंड, जहां पे भी सुन्नी डोमिनेटेड एरिया है या सुन्नी इस्लाम है,
वहां पे पॉलिटिकल अथॉरिटी और रिलीजियस अथॉरिटी को अलग किया जाता है, बट जहां भी आपकी शिया डोमिनेटेड एरिया है वहां पे दे डू नॉट गो विद दिस डिस्टिंक्शन, एंड दैट्स व्हाई इन ईरान यू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ आयतुल्ला एंड द करंट इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979 के बाद वी आर सीइंग आयतुल्ला खमीनी. So this was the basic difference between the Shia and Sunni. So if we see the global division of Shia and Sunni, तो 85% population पूरे world में, out of all the Muslim population, 85% population are from the Sunni community and बाकी 15% हमारे केवल आपका Shia community के belong करते हैं. If we have to see the geographical distribution, so ये देख सकते हैं आप मिडिल ईस्ट का मैप है, और ये देख सकते हैं आप ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है, ये आपका सुन्नी मेजॉरिटी रीजन है, एंड सिमिलरली ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ईरान में मैक्सिमम शिया पॉपुलेशन रहता है, एंड देन इराक में भी आपका मैक्सिमम शिया पॉपुलेशन रहता है, एंड सिमिलरली यमन में भी कुछ शिया पॉपुलेशंस आपके रहते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हो आप यमन में भी कुछ सुन्नी पॉपुलेशंस रहते हैं, इस यूएई में सुन्नी पॉपुलेशंस रहते हैं. इस तरीके का हमारा आपका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ शिया एंड सुन्नी. सो शिया का जो लीडर है वो ईरान है, सो कॉल्ड लीडर, एंड जो सुन्नी का लीडर है वो है सऊदी अरेबिया. सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन दीज टू नेशंस which fight for regional dominance, which fight for the ideological battle, and which fight for superiority, whether they want a Shia-led world order in Middle East or they want a Sunni-led world order in the Middle East. तो ये पहला एक आपका जड़ है जिसकी वजह से ये आपको कॉन्फ्लिक्ट होता है. नेक्स्ट, और बाकी फिर दिस डायग्राम इज जस्ट फॉर द इलस्ट्रेशन. आप देख सकते हैं कि सुन्नी में फर्दर डिविजन है, हनाफी, शाफी, एंड देन हनबली, एंड देन मलिकी, एंड देन इस्लाम में शिया में देख सकते हैं आप 12, और उसके बाद 7, एंड देन जैदी शिया एंड अलावी शिया. तो ये हम लोग आपको जब मिडिल ईस्ट में हर एक कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे इसका रेलेवेंस होता है, बट इस टॉपिक में ज्यादा रेलेवेंस नहीं है. बट जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट शिया सुन्नी में फर्दर सब डिविजन्स भी आपके देखने को मिलते हैं. देन ऑरिजिन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. तो ये तो पहले बैकग्राउंड हो गया, हु आर शिया एंड हु आर सुन्नी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ऑरिजिन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. तो सुन्नीज डोमिनेटेड द फर्स्ट 9 centuries ऑफ इस्लामिक रूल. ठीक है, सुन्नीज पहला, ये मिडिएवल एज से चला आ रहा कॉन्फ्लिक्ट है, एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 century उस समय सुन्नीज वर द डोमिनेंट प्लेयर इन दिस पर्टिकुलर रीजन until the Safavid dynasty was established in Persia in 1501. ठीक है, तो सफाविद डायनेस्टी आने के बाद सुन्नी वर्ल्ड ऑर्डर या सुन्नी लेड जो वहां पे डोमिनेंस था, दैट केम अंडर ह्यूज अटैक, एंड सफाविद डायनेस्टी मेड शिया इस्लाम the state religion, and over the following 2 centuries, they fought with the Ottomans, the seat of the Sunni caliphate. तो ये बेसिकली आपको देख सकते हो मिडिवल एज में लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है. सो अर्लियर द सुन्नी वर द hegemonic power or the hegemonic player in this particular region, but it was broken down by the Safavid dynasty, who established the Shia Muslim or the Shia sect as the state religion in the Persia, the modern day Iran. And उसके बाद से ये confrontation आपके चलते रहा, and finally with time ये सारे empire, Safavid dynasty, Ottoman empire कौन था? Ottoman empire was basically based in Turkey, and that was the empire which represented the interest of the Sunni community, unlike the Safavid dynasty. तो इस तरीके से आपको काफी battles medieval age में चले, and with time all these empires collapsed, and finally आपके टर्की में और सऊदी अरेबिया वाले रीजन में आपके सारे सुन्नी पीपल रहने लगे, और ईरान, इराक की तरफ आपके मैक्सिमम शिया पॉपुलेशन रहने लगा. सो दिस इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड द करंट न्यूज अबाउट द सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट, कि ये जो प्रॉब्लम है ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये सदियों पुराना प्रॉब्लम है, एंड एवरी पीरियड हैव सॉ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू पर्टिकुलर रिलीजन फॉर देयर सुपीरियरिटी. और ये केवल आपका as a religion in Islam में नहीं है, this particular practice has been seen in Christianity also, the conflict between Protestants and Catholic, and similarly in Hinduism also, the conflict between Brahmanical religion, Brahmanism, and the Buddhism or so-called Jainism. So this particular problem of sectarian conflicts is quite seen in every religion. Iran's Islamic Revolution. So this particular Islamic Revolution which happened in 1979 was the game changer event which happened in the Middle East. क्योंकि जब 1950s जब कोल्ड वॉर चल रहा था, उस समय सऊदी और ईरान के बीच में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था,
बिकॉज ईरान में 1979 में मोहम्मद रजा पहलवी, अप टिल 1979 मोहम्मद रजा पहलवी वाज द लीडर। और मोहम्मद पहलवा रजवी जो थे, दिस पर्टिकुलर पर्सन was basically a western influenced person। इसको कुछ ज्यादा मतलब नहीं था इस्लामिक रिवॉल्यूशन, शिया सुपरियोरिटी को एस्टैब्लिश करने से। दिस पर्सन was somewhere linked to that liberal principle which West has propagated। और Saudi Arabia was also having a good relation with US because US was highly dependent on the oil import from the Saudi। तो उस समय 1979 तक सऊदी ईरान दोनों का रिलेशन हमारा यूएस के साथ काफी ज्यादा आपका अच्छा हुआ करता था। द थिंग स्टार्टेड टू बिकम प्रॉब्लम आफ्टर 1979। 1979 के बाद दिस पर्टिकुलर पर्सन whose name is Ayatollah Khamenei, Ayatollah Ruhollah Khamenei। This person, see Ayatollah again, यही हम बात कर रहे थे, शिया में क्या होता है आयतुल्ला, मतलब these persons are the versions of God। They have come in this particular place to represent the directions which has been given by the God। इसलिए यहाँ पे ईरान में काफी ज्यादा इनका इंपॉर्टेंस हो जाता है। So 1979 में मोहम्मद रजा पहलवी को हटा दिया गया ईरान के पावर से, और इसी को हम लोग कहते हैं ईरान का इस्लामिक revolution। Brought down the Iranian monarchy and turned Iran into a Shia theocratic republic, This gave Shia cleric Ayatollah Ruhollah Khamenei the opportunity to implement his vision for an Islamic government ruled by the guardianship of the jurist that is proposed by the Sunnis। ठीक है, because again हमने बात किया कि सुन्नी में there's a difference between political authority and the religious authority। बट यहाँ पे ईरान में जब ये चीज हुआ, इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, तो अयतुल्ला खमीनी पावर में आए, और इनका यही कहना था कि नाउ देयर शुड बी नो डिवीजन बिटवीन दीज टू थिंग्स। इसके बीच में कोई डिवीजन नहीं होता है। द पॉलिटिकल अथॉरिटी हैज टू बी बेस्ड ऑन द रिलीजियस अथॉरिटी ऑल्सो। सो देखो सुन्नीस क्या है, सुन्नीस डिफरेंशिएट्स बिटवीन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड रिलीजियस स्कॉलरशिप। शियाज अयतुल्ला हैव ऑलवेज बीन द गार्जियंस ऑफ द फेथ। ठीक है, सो 1979 के बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है सऊदी। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑरिजिन of this conflict। So this happened in the year 1979 when the Iran's Islamic Revolution happened and it overthrew Mohammad Reza Pahlavi and introduced, or the Ayatollah Al Khamenei came to power, and he told that now there should be no division between political authority and religious authority। The politics has to be based on the basic premise of religion, and this was a huge blow to the Saudi Arabia because Saudi Arabia works on a completely different principle unlike the Iran। ठीक है, तो ये अब वापस से शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट जो मिडिवल एज में देखा था हमने, सफाविद डायनेस्टी ऑटोमन एम्पायर वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था, वापस से ये कॉन्फ्लिक्ट 1979 के बाद आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जब इस ईरान में आपका इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया तो सऊदी अरब को सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया क्या है, सऊदी अरेबिया हैज मिलियंस ऑफ एडherents ऑफ सुन्नी इस्लाम नोन एज वहाबिज्म। तो उनका जो एक आपका सुन्नी सेक्ट का एक जो फर्दर सब डिवीजन है वहाबिज्म, जो हनबाली स्कूल से आता है, सुन्नी हनबाली स्कूल से जो हमने पहले देखा था वो डायग्राम, उसमें से ये वहाबिज्म से आता है, विच इज वेरी मच एंटेगोनिस्टिक टू द शिया इस्लाम। ठीक है, तो जब शिया इस्लाम का वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद सऊदी केम टू एक्शन, एंड सऊदी का एक ही ऑब्जेक्टिव था, हाउ टू कट डाउन द इन्फ्लुएंस ऑफ शिया इस्लाम एंड हाउ टू स्प्रेड आवर ओन इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैटल ऑफ अगेन दैट सुपरियोरिटी एंड रीजनल डोमिनेंस गॉट started, right? The transformation of Iran into Shia power after the Islamic Revolution induced Saudi Arabia to accelerate the propagation of Wahhabism as both countries revived a century-old sectarian rivalry over the interpretation of इस्लाम। ठीक है, सो 1979 के पहले चीजें ठीक थी, 1979 के बाद जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पे कंप्लीटली डिफरेंट पॉलिटिकल सेटअप हुआ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर आया हु वांटेड टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ शिया इस्लाम इन दिस पर्टिकुलर होल रीजन। उसके बाद सऊदी अरेबिया अंडरस्टूड दैट वी हैव टू आल्सो काउंटर दैट ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ शिया इस्लाम, और इसी के बाद से again that century old rivalry वापस से पब्लिक इमेजिनेशन में आया, and because of this particular thing still मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं which are facing an existential crisis। तो यूएस पाइवॉट टू सऊदी, ठीक है,
तो जैसे 1979 में मोहम्मद रजा पहलवी हु वाज अ काइंड ऑफ अ लिबरल पर्सन, जब इनको ओवरथ्रो कर दिया गया तो ऑब्वियस बात है यूएस और ईरान का रिलेशन भी स्टार्टेड टू डेटोरिएट। तो 1979 के बाद क्या हुआ, यूएस सऊदी स्टार्टेड टू कम मच मोर क्लोजर और यूएस ईरान का रिलेशन आपको स्टार्टेड टू डिक्लाइन। तो देखो 1979 से 81 यूएस एम्बेसी को, उसमें बहुत सारे एम्बेसी 450 पर्सन्स को हॉस्टेज बना दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसी में। 1988 में ईरानी पैसेंजर प्लेन गॉट शॉट डाउन। 2002 में व्हेन इन फेमस 9/11 अटैक हैपेंड, देन उस समय के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने कहा था, एक्सेस ऑफ एविल का एक टर्म यूज किया था, अंडर विच 3 कंट्रीज वर मेंशन्ड, वन वाज ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया। ठीक है। एंड देन 2000 में व्हेन उस समय के ईरान के कुछ ऑपोजिशन लीडर्स ने कहा कि ईरान इज डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, तो उसके बाद से कांस्टेंट ईयर ऑफ सैंक्शंस हमने देखा वेस्ट की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ईरान के ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए गए। बट 2015 आपको फाइनली एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के अंदर न्यूक्लियर एग्रीमेंट आया, आपने ये चीज को पढ़ा होगा। But finally, this agreement was not able to work when Donald Trump came to power. He abandoned the deal. So the crux of this particular slide is that after 1979, the relationship of US and Saudi was improving, and the relation of US and Iran were deteriorating. And finally, you can see the last year news when Qasim Soleimani, a very important commander of the Iranian force, was shot down by the US drone attack, और उसके बाद से ये रिलेशनशिप यूएस ईरान की काफी ज्यादा खराब चल रही है। सो ये अभी हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये जब से 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया है, उसके बाद इम्पैक्ट क्या देखने को मिला, तो प्रॉक्सी वॉर्स। ठीक है। तो जब सऊदी और ईरान आपस में तो लड़ नहीं सकते हैं दोनों, तो वो लोग क्या किए, दूसरे कंट्री में जाके लड़ने लगे। और साथ ही साथ पता होगा आपको, ये पर्टिकुलर जो पीरियड था, ये आपको कोल्ड वॉर का पीरियड भी था, तो एक तरीके से मिडिल ईस्ट में भी आपको कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया था। तो सऊदी अरेबिया, यूएस एक साथ थे, उधर ईरान, सोवियत एक साथ थे, और वो दूसरे एरियाज में जाके लड़ रहे थे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरिया में बशर अल असद का, दैट पर्सन इज द प्रेसिडेंट, और बशर अल असद जो है, दैट पर्सन वो जो पावर में आए हैं, he depends on only the 13% population of Syria, जो कि शिया मुस्लिम्स हैं। तो सीरिया में केवल 13% ही आपको शिया पाए जाते हैं, बाकी सारे सूनी इस्लाम में पाए जाते हैं। बट बिकॉज ऑफ दैट 13% का सपोर्ट से प्रेसिडेंट बशर अल असद हैज बीन रिमेन इन पावर। तो ऑब्वियस बात है, कोई ना कोई इसको सपोर्ट कर ही रहा होगा। तो दिस पर्सन इज सपोर्टेड बाय ऑब्वियसली ईरान, एंड द सेकंड पार्टनर इज द सोवियत। और इसके ऑपोजिशन में जो है आपके रेबेलियंस, उनको सपोर्ट कहां से करेगा, ऑब्वियस बात है, इसके अपोजिशन में कौन होंगे, सुन्नी। तो उनको सपोर्ट कौन कर रहा होगा, सऊदी अरेबिया एंड ऑब्वियसली वेस्ट। सो सिमिलरली यमन में भी आपका यही प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, और यमन में भी अगेन द फाइट इज बिटवीन द शिया एंड सुन्नी। सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं हूथीज करके एक ट्राइब है विच बिलोंग्स टू द जायदी शिया कम्युनिटी, and similarly Abdullah Saleh, who is also a Shia person, and this particular person was the leader of Yemen before the Arab Spring, which happened in 2011. और 2011 Arab Spring जब हुआ, what is Arab Spring? Arab Spring is basically that awakening or uprisings of the people in that particular region who wanted to topple down the monarchical governments and replace it with the democratic system. So उसी अरब स्प्रिंग के बाद आपके पास this Abdullah Saleh was thrown out of power, and his deputy, whose name is Mansour Hadi, this person was brought to power, and surprisingly this person was from the Sunni community, and he was supported by Saudi Arabia and West. तो जब 2015 में this 2011 में when this person came to power replacing Abdullah Saleh, तो उसके बाद से again the Houthis wanted to rebel against this person, और तब से अगेन ये शिया और सुन्नी का फाइट यहाँ पे चल रहा है। सो बेसिकली यही है प्रॉक्सी वॉर। इसी तरीके से ईरान इज सपोर्टिंग सम ऑर्गेनाइजेशंस, सऊदी इज स्पॉन्सरिंग सम ऑर्गेनाइजेशंस। इससे फायदा तो कुछ होगा नहीं, इससे नुकसान होता है फॉर द वुमेन एंड द चिल्ड्रन हु फेसेस द बर्न ऑफ ऑल दीज थिंग्स। उनका ह्यूमैनिटेरियन इशू आता है। बाकी फिर ये पावर की स्ट्रगल है विच इज द हार्श रियलिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ओके, सिमिलरली इन लेबनान भी आपको यही हो रहा है। लेबनान में अगेन एक शिया लेड ग्रुप है जिसको हेजबुल्लाह कहते हैं, एंड हेजबुल्लाह इज लेबनीज शिया मिलिशिया, एंड सिमिलरली लेबनान में सुन्नी मुस्लिम्स हैं विच आर सपोर्टेड बाय द
सऊदी। अफगानिस्तान में भी आपका यही हुआ था। अफगानिस्तान में जो सोवियत इन्वेजन हुआ था उसको काफी ज्यादा ईरान सपोर्ट करता था। लेकिन आपको पता है जब आप अफगानिस्तान में पढ़ोगे किस तरीके से सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, वेस्ट, इन्होंने मुजाहिदीन, तालिबान, अलकायदा, इनको बहुत ज्यादा फंडिंग किया था। क्यों फंडिंग किया था? बिकॉज अलकायदा इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन विच बिलोंग्स टू सुन्नी सेक्ट, ठीक है, सलाफी जिहादिस्ट ग्रुप है विच बिलोंग्स टू द सुन्नी सेक्ट, और इसको काफी ज्यादा फंडिंग मिलता है आपको सऊदी अरेबिया से, राइट। एंड सिमिलरली अभी आपको पता है कि अफगानिस्तान का क्या हाल है, एंड दिस इज द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। सिमिलरली इन बहरेन में भी आपको यही चीज आपको देखने को मिलता है। दिस प्रॉक्सी वॉर का एक और जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपको बहरेन में देखने को मिलता है। सो दीज आर सम ऑफ द proxy wars. We have not discussed in detail, just trying to give you basic essence about how the things are happening in Middle East. और इन सब का इतना ज़्यादा आउटकम खराब आता है कि every day when you will read the newspaper or will read a magazine, you will see how many people are dying every day in the terror attacks, how many people are dying because of malnutrition, how many women are being exploited, how many children are losing their whole opportunity of education and other basic थिंग्स। तो इसका अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ही धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं, किस बात के लिए? दैट इज अबाउट रीजनल इन्फ्लुएंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। देन जो अभी फ्रेश टेंशन है, ये तो टेंशन चले आ रहे थे, फ्रेश टेंशन आपको बेसिकली 2015 में स्टार्ट हुआ। सो 2015 में क्या हुआ? मक्का में स्टैम्पीड हुआ था ड्यूरिंग द एनुअल हज पिलग्रिमेज था, और आपको पता है लोग मक्का जाते हैं हर साल, वहां पे सो वहां पे एक बहुत ज्यादा बड़ा स्टैम्पीड हुआ, बहुत लोग वहां पे मारे गए, और इस पूरे इशू को ईरान ने कहा कि दिस इज हाउ द सऊदी आर इररिस्पॉन्सिबल पीपल। अपने ही धर्म के लोग वहां पे पिलग्रिमेज के लिए आते हैं और आप उनके लिए बेसिक सुविधाओं को नहीं देते हो, एंड दिस इज व्हाट इज द स्टेट की वहां पे आप ही के लोग मारे जाते हैं। सो ईरान ट्राई टू पॉलिटिसाइज दिस इशू, ठीक है। तो उसके बाद सऊदी ने क्या किया? सऊदी अरेबिया कट इट्स एंटायर टाइज विद द Iran. 4 months after the stampede in Makkah, Saudi Arabia executed a prominent Shia leader, Nimr al-Nimr, a critique of the Saudi government. Now, this is again a very important flashpoint which happened. The Saudi Arabia executed a very, very important Shia scholar, or this was the dead end in terms of the relationship. और इसके बाद क्या हुआ? Protesters in Tehran stormed into the Saudi embassy. तो ईरान में जो सऊदी का एम्बेसी था, वहां पे आपको जो प्रोटेस्टर्स थे, जो शिया मुस्लिम फॉलोअर्स थे, उन्होंने सऊदी एम्बेसी के अंदर घुस गया और काफी ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। एंड देन सिमिलरली ईरान सस्पेंडेड द हज पार्टिसिपेशन। सो दिस पर्टिकुलर थिंग स्टार्टेड इन मिडिवल टाइम। उसके बाद से कोल्ड वॉर के समय प्रॉक्सी वॉर चल रहे थे। अरब स्प्रिंग के बाद अगेन यहाँ पे फॉरेन इन्फ्लुएंस बढ़ा, एंड फाइनली इन 2015 आफ्टर दिस इंसिडेंट ये रिलेशनशिप और काफी ज्यादा डेटोरिएट होना आपका स्टार्ट हुआ। Now let's come to the agreement। तो ये आपका थोड़ा सा the brief introduction or the brief historical perspective which you should know, because इस understanding के साथ now we can understand the agreement in a much better intellectual manner, right? So when did all this started? So ये agreement ऐसा नहीं कि आपको रातों रात हुआ है। It basically started in 2021. Iran and Saudi Arabia hold talks. उस समय Baghdad was hosting this particular thing. Similarly in 2022 further this talks was improved and it was mediated by the Iraq and Oman. But कुछ ज्यादा outcome हो नहीं पाया था इन सारे talks के बाद। लेकिन जब शी जिनपिंग visited Saudi Arabia for talks with MBS Mohammed bin Salman, तो उसके बाद इसमें काफी ज्यादा urgency देखने को मिला। And finally this year we have seen that both the countries have mediated, have resolved their issues because of China's mediation. So उस एग्रीमेंट में है क्या? उस एग्रीमेंट में बेसिकली it is about the restoring of the ties and reopening the diplomatic missions in the Chinese brokered talks. So reopening embassies, दोनों कंट्री जो आपने उस 2015 में जो अपने एम्बेसीज को क्लोज कर दिया था, ईरान ने सऊदी में और सऊदी ने ईरान में, उन एम्बेसीज को ओपन किया जाएगा विद इन 2 months। और उसके बाद रिज्यूमिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कल्चरल अकॉर्ड्स, उनको भी वापस से स्टार्ट किया जाएगा। फाइनली ईरान ने कहा है कि सऊदी अरेबिया पे जो अटैक होता है फ्रॉम यमन, यमन में कौन अटैक कर रहा है? यमन में भी अब डिस्कस, देयर इज अ ट्राइब नोन एज हुदी व्हिच इज ऑफ ज़ैदी शियाइट सेक्ट, एंड हुदीज आर सपोर्टेड बाय हुम? बाय ईरान। और आप ये देखेंगे आगे जाके किस तरीके से रिसेंट टाइम्स में हुदी द्वारा किए गए बहुत सारे अटैक सऊदी के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे थे। इस एग्रीमेंट में हुआ क्या कि ईरान विल ट्राई टू कन्विंस हुदी, ईरान विल ट्राई टू एंश्योर कि यमन से किसी तरीके का अटैक सऊदी अरेबिया में नहीं जाता है। एंड ऑन द सऊदी अरेबिया's part, Saudi Arabia agreed
टू रेन इन द इंटरनेशनल, अ फारसी न्यूज चैनल जो कि आपको ईरानियन रेजिम के अगेंस्ट काफी क्रिटिक है, तो दैट पर्टिकुलर चैनल विल अगेन बी ब्लॉक्ड। सो ज्यादा कुछ है नहीं इस एग्रीमेंट में, केवल एम्बेसीज एक तरीके का इनिशिएशन है, एक तरीके का स्टार्ट है, और टाइम विल ओनली टेल व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट एट व्हाट लेवल। तो ये किस लेवल पे हुआ है, तो आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैसे हमारे इंडिया में अजीत डोवाल है, तो उन्हीं के लेवल पे एनएसए लेवल के ऊपर बेसिकली ये टॉक हुआ है, और जो मेडिएटर है वो चाइना के बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट वांग यी ने किया है, एंड दिस इज हाउ द होल थिंग हैज बीन डन, पार्ट ऑफ लार्जर जियोपॉलिटिक्स रीअलाइनमेंट। अब यहां से थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज हैपनिंग इन आइसोलेशन, इनफैक्ट दिस इज द एग्रीमेंट which is in continuation with a lot of different agreements which we have seen in the past few years, starting with 2020 when UAE, जो कि अगेन एक सुन्नी पॉपुलेशन है, it tried to normalize its relation with Israel. You already know that Israel का भी relations with Arab country is very complicated, लेकिन 2020 में UAE ने और Israel ने अपना relations को normalize कर लिया। Then in the same year 2020 में आपको पता हो अब्राहमिक अकॉर्ड आया था between Israel, UAE and Bahrain, and then similarly 2021 में इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड आया जिसको I2U2 और वेस्टर्न क्वाड कहते हैं, एंड सिमिलरली 2023 में सऊदी और ईरान का डील आया। सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज दैट दिस पर्टिकुलर डील इज नॉट समथिंग व्हिच इज हैपनिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दिस डील इज समथिंग व्हिच इज नॉट जंप फ्रॉम द skies, this is something which is happening as a very structural change which is happening in the geopolitical domain in this particular region. So we'll try to understand that why this is happening, but व्हाट्स ड्राइविंग दिस चेंज, ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डील कि ये डील क्यों हुआ है सऊदी और ईरान के बीच में। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो I2U2 आया है, अब्राहमिक अकॉर्ड आया है, यूएई का इजराइल के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना है, सो व्हाई ऑल दीस थिंग्स आर हैपनिंग। तो उसका सबसे पहला रीजन है द यूएस पाइवॉट टू इंडो पैसिफिक। यू नो दैट इंडो पैसिफिक हैज बिकम द मेजर पब्लिक डिस्कोर्स इन द 21st century वेयर द स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो यूएस अपना सारा फोकस कहां पे डाल रहा है, इंडो पैसिफिक में। तो जो मिडिल ईस्ट था, जो कि हमेशा से यूएस के इन्फ्लुएंस में रहा है, मिडिल ईस्ट में कोई भी सिक्योरिटी इशू आता था उसको यूएस इफेक्टिवली रिजॉल्व करता था, बट आज यूएस के कमिटमेंट के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं बिकॉज यूएस इज नाउ ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। दैट्स व्हाट यू सीन कि यूएस अफगानिस्तान से भी बाहर निकल गया था बिकॉज यूएस का जो नेक्स्ट बिग चैलेंज है उस पर वो सारा एनर्जी अपना चैनलाइज करना चाह रहा है। सो यूएस पाइवॉट टू द इंडो पैसिफिक हो गया आपके पास। इसमें देख सकते हो आप यूएस लेट अफगानिस्तान has seriously made the Gulf countries anxious of the America's commitment in this particular region. So the sporadic going out of the US from the Afghanistan was a serious blow to every country who is dependent on the America's security, because the way America went out of that region completely leaving those people under a huge crisis, उसके बाद से लोगों को समझ में आ गया है कि if you have to live, you have to take care of your own interest. Also, since the Ukraine war के बाद भी पता है आपको US is completely involved in the European geopolitical dilemma. तो इस वजह से जो US एक हेजेमोनिक पावर रहा है, US जो कि सारे कंट्रीज का सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है, आज US के कमिटमेंट पे लोगों को शक हो रहा है बिकॉज US is trying to put all its energy to compete with China. That's why West Asia के लोग के जो कंट्रीज हैं, they are also trying to go for their own hedging. डीपनिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अरब कंट्रीज एंड ईरान। तो रिसेंटली हम लोग देखेंगे किस तरीके से सऊदी ईरान का रिलेशंस आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा था। तो देन सिमिलरली फ्राइटनिंग द पॉसिबिलिटी दैट एज ऑफ ऑयल माइट बी ड्राइंग टू द क्लोज। आपको ये भी पता है कि मिडिल ईस्ट इज वन ऑफ द लकीएस्ट एरिया बिकॉज वहां पे काफी ज्यादा ऑयल था, नेचुरल गैस थे, और इसकी वजह से दे हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, but eventually you know that every country is trying to shift towards renewable energy, और आज एनर्जी के काफी different mediums भी आ चुके हैं। So every person knows that the age of oil might come to end. So अब मिडिल ईस्ट को अगर आगे बढ़ना है, if they want to become economically stable, so they're trying to diversify its economy by moving away from the oil exports towards boosting tourism, towards boosting FDI. और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी हो। तो सऊदी को भी पता है कि 2030 का, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सऊदी अरेबिया का एक विजन 2030 है जिसमें सऊदी ने यही चीज कहा है कि हम लोग को ऑयल डिपेंडेंस से हटके वी हैव टू फोकस टुवर्ड्स टूरिज्म, वी हैव टू फोकस टुवर्ड्स FDI, कि किस तरीके से हम अपने इकोनॉमी की रेजिलियंस को बचा के रख सके, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिडिल ईस्ट में आपका स्टेबिलिटी हो। सो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स because of which geopolitical alignment are changing in the Middle East.
अब हम लोग देखते हैं बेसिकली अबाउट द सऊदी ईरान डील। इसमें क्या कंपल्शन था सऊदी को कि ये डील करना पड़ा, क्या मजबूरी ऐसी आ गई थी ईरान के पास कि ये डील करना पड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट वर द इंटरेस्ट ऑफ सऊदी इन दिस पर्टिकुलर डील। तो सऊदी का अगर हम लोग देखेंगे कि व्हाई डिड सऊदी हेल्प दिस पर्टिकुलर डील विद ईरान, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि यूएस सऊदी रिलेशंस हैव टेकन अ हिट। तो जो यूएस सऊदी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिट एक फ्रेंडशिप रहा था, आज इन रीसेंट टाइम्स हम लोग देख रहे हैं कि सऊदी यूएस के रिलेशंस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला है बिकॉज ऑफ मेनी स्ट्रक्चरल रीजंस व्हिच वी आर ट्राइंग टू सी। सबसे पहले मर्डर ऑफ द जर्नलिस्ट जमाल खशोगी। आपको पता होगा एक जर्नलिस्ट था हु वाज क्रिटिकल ऑफ एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान, और इसको कहा जाता है कि सऊदी के जो एमबीएस है उन्होंने मरवाया है। उसके बाद से यूएस के जो लिबरल पीपल थे दे हैव ट्राइड टू क्रिटिसाइज सऊदी के लीडर, और उसके बाद से ये रिलेशनशिप काफी ज्यादा इफेक्ट किया है। देन सिमिलरली सऊदी अरेबिया इज ट्राइंग टू गेट द हेल्प। सऊदी अरेबिया आपको चाह रहा है कि वो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी दे जनरेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो सऊदी अरेबिया has been seeking help for developing a civil nuclear program because Saudi is trying to get the nuclear energy, और उसके लिए उसको यूएस का सपोर्ट चाहिए, but US is reluctant to give that kind of support to Saudi, and that's what is annoying Saudi. Saudis have decided to go slow on reconciling with Israel. आपको पता है कि यूएई ने तो इजराइल के साथ रिलेशन ठीक कर लिया, लेकिन Saudi is not able to normalize that relation with Israel because आपको पता है Saudi also considers, because Saudi में मक्का मदीना है, and Saudi considers कि that particular country is the leader of the Muslim वर्ल्ड, और इसीलिए वो इजराइल के साथ कॉम्प्रोमाइज करने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अनलाइक यूएई, बिकॉज वहां पे उसका जो रिलीजियस लीडरशिप का जो उसका क्रेडेंशियल्स है दैट माइट बी अफेक्टेड। देन डिजायर टू टर्न सऊदी अरेबिया इनटू अ ग्लोबल पावर एंड मेक इट लेस डिपेंडेंस ऑन यूएस, दैट्स समथिंग एवरी कंट्री इन मिडिल ईस्ट ट्राइंग टू डू। एंड देन सऊदी अरेबिया यूएस क्लैश ओवर द रीजन ऑफ ओपेक प्लस ऑयल कट। तो आपको पता है कि जब अभी ये वॉर चल रहा था उसके बाद यूएस वांटेड द ओपेक कंट्री ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टू एक्सपैंड इट्स ऑयल प्रोडक्शन, बट सऊदी ने इसको डिनाई कर दिया बिकॉज ऑयल की काफी ज्यादा शॉर्टेज थी, और सऊदी को कहा गया कि आप ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाएं। यूएस ने कहा, बट सऊदी हैव डिक्लाइन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो उसकी वजह से भी ये रिलेशनशिप्स काफी ज्यादा इंपैक्टेड हुए। Similarly, economic diversification, this we have already done, कि Saudi is trying to diversify its economy. Then Iran's challenge on rise, तो recently ईरान का challenge सऊदी अरेबिया के लिए काफी महंगा पड़ रहा है, which we can see in 2018 US under Trump जो ईरान के न्यूक्लियर डील को सस्पेंड कर दिए, उसकी वजह से ईरान आपको पता है इट हैज एनरिच्ड नाउ इट्स यूरेनियम टू अप्रोक्सीमेटली 83%, व्हिच इज वेरी क्लोज टू दैट न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, देन सऊदी के ऑयल फैसिलिटीज जो हैं वो आपको येमेन के हुदी रेबल के द्वारा अटैक किए गए थे 2019 में, एंड यूएस फेल टू डिलीवर एनीथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर अटैक। तो अगेन सऊदी हैव अंडरस्टूड कि यूएस का हेल्प नहीं आएगा कल को अगर ईरान का डायरेक्ट अटैक आता है तो। द येमेन हुदी रेबल्स हैव एक्सपैंडेड देयर टेरिटोरियल कंट्रोल विद सऊदी अरेबिया perceives as a potential beachhead for Iran or Arabian Peninsula along the vital shipping routes in the रेड सी। सो ये आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ सऊदी अरेबिया, और यहां पे देख सकते हैं आप येमेन है, ठीक है, और येमेन में देखो आप अगेन शिया सुनी है, तो येमेन में ये वाला जो पॉपुलेशन है आपका, ये आपका शिया पॉपुलेशन है, ये येमेन का शिया पॉपुलेशन है, और ये आपका सुनी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये जो सऊदी अरेबिया है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली, क्योंकि यहाँ पे कौन है शिया, ये कॉन्स्टेंटली इस पे आपको अटैक कर रहे हैं, ये कॉन्स्टेंटली इस पे अटैक कर रहे हैं, और रिसेंटली अटैक्स काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो सऊदी को ये डर लग रहा है कि अगर मान लो कल को मेरा ईरान के साथ भी अटैक हो जाए और यमन से भी अटैक हो जाए, तो ईरान से अगर अटैक होता है तो सऊदी का यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, और अगर यमन से प्रॉब्लम होता है तो सऊदी का यहां पे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस केस पे सऊदी विल बिकम अ लैंडलॉक कंट्री, सऊदी का सी के पास एक्सेस ही नहीं बचेगा। तो दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम कि जिस तरीके से हूथी रेबल्स का आपको यमन में इन्फ्लुएंस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट इज पोजिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल चैलेंज टू सऊदी अरेबिया। देन पॉलिटिकल एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्राइसिस जो सऊदी अरेबिया फेस कर रहा है। आपको पता है जब से अरब स्प्रिंग आया है, अरब स्प्रिंग बेसिकली व्हेन एवरी पर्सन वर आस्किंग फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसके बाद से सऊदी अरेबिया में भी काफी ज्यादा इन चीजें को देखने में मिला है। और साथ ही साथ आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में जो you can see that Saudi Arabia having increasingly worried about their own grip on power, Arab upspring which spread to Bahrain and Syria, countries at fault lines of Islam sectarian divide. In each political power is held by minority. तो जो सीरिया है, अगर आप लोग सीरिया में देखोगे तो यहाँ पे कौन है, प्रेसिडेंट बशर अल असद,
और हमने देखा कि बशर अल असद जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, ओनली ऑफ द शिया पॉपुलेशन, और शिया कितने 13%। सिमिलरली इन बहरेन, बहरेन में भी क्या है, आपको सुन्नी रनिंग फैमिली है लेकिन वहां पे शियास मेजॉरिटी में है। मतलब इसका क्रक्स क्या है कि अरब स्प्रिंग के बाद काफी ज्यादा चेंजेस आए थे, तो सीरिया में सुन्नी मेजॉरिटी में है बट लीडर कौन है, शिया का। सिमिलरली बहरेन में सुनीज आर इन द पावर बट मेजॉरिटी में कौन है, शिया में। तो हो सकता है कल को सऊदी में विच इज अ शिया मेजॉरिटी कंट्री, वहां पे भी कल को कोई सुनी पावर आ जाए। तो इसलिए एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी है सऊदी अरेबिया को, जो डोमेस्टिक इंटरनल लेवल पे वो फेस कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट डज नॉट वांट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू ईरान। और ईरान के साथ तो आपको पता ही होगा, ईरान अभी आपको काफी ज्यादा सैंक्शंस में है और ईरान की इकोनॉमी काफी ज्यादा स्लो डाउन हो चुकी है, इसलिए ईरान इज ट्राइंग टू एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई इट्स ऑप्शन टू अदर कंट्री। और सिमिलरली आपको पता है कि ईरान में हमारा जो अभी हिजाब के लेके प्रोटेस्ट था, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो चुका है। लॉट ऑफ वुमेन हैड लेड दैट प्रोटेस्ट, और वहां पे फॉरेन इन्फ्लुएंस देखने को भी मिल रहा है। तो ईरान इज अगेन फेसिंग अ डोमेस्टिक प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाई इट डज नॉट वांट फर्दर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स एट इन बॉर्डर्स। तो इन कारणों की वजह से these two countries have come together, showed that level of maturity, and they are able to do that strategic handshake in order to bring the stability in this particular region. अब यहाँ पे चाइना का क्या इंटरेस्ट है, तो चाइना का अगर इंटरेस्ट हम लोग देखें इस पूरे डील में कि वाई चाइना ने क्यों ये सब चीजें किया, तो सबसे पहले चाइना का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, बिकॉज चाइना इज द लीडिंग बायर ऑफ द सऊदी ऑयल एंड इट इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ईरान। इसलिए वो चाहता नहीं कि दोनों के बीच में रिलेशंस खराब हो। साथ ही साथ चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी सक्सेस बनाने के लिए वेस्ट एशिया का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन लगेगा। कमिंग टू द रीजनल इंटरेस्ट में चाइना का जो प्रेजेंस है वेस्ट एशिया में वो काफी कम है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एरिया हैज ऑलवेज बीन अंडर द डोमिनेंस ऑफ यूएस। तो देख सकते हो जितना भी आपका डेविड एग्रीमेंट है इजिप्ट और इजराइल के बीच में, ओस्लो एकॉर्ड है इजराइल और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ के बीच में, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे पीस डील में who was the broker? It was the US. So China was completely absent in this particular region, but that is now being changing. China wants to increase presence in this geopolitically, geostrategically economic area. So regional interest ये हो गया, मतलब यहाँ पे अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना। सॉफ्ट पावर, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव विच चाइना इज ट्राइंग टू सी फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू बिकम अ हेजेमन, यूएस हैज ऑलवेज बीन अ हेजेमन आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो अगर आपको हेजेमन बनना है, so the other people also needs to accept that you are a hegemon. So for a hegemon, you have to act something. You have to show people that my hegemony is not antidote to your existence. You have to ensure that trust among the people. और इसलिए दिन पर दिन जैसे चाइना राइज कर रहा है, China wants that other country should also trust. Other countries should not think that China's rise will pose an existential crisis to them, and hence China is trying to give the slogan that I'm trying to build a community of shared destiny. ठीक है कि China is going to build a community of shared destiny when US are busy rallying the Western world to arm Ukraine, to push Russia and weaken Moscow through sanctions. China is quietly brokering peace in the global south. ठीक है, जब US अपने लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व है, what I am doing, I am trying to bring peace in the global south. Beijing साथ ही साथ enjoys good relation with Tehran, Iran and Saudi, which reflect its neutral posture unlike the political posture of United States. Then regional leaders have also noted that appreciation that China, which maintains a policy of non-interference in other countries' affairs. Beijing last month introduced a peace plan for यूक्रेन। तो इस तरीके से चाइना एक तो इकोनॉमिकली अपने आप को काफी ग्रो कर रहा है, डिफेंस से काफी ग्रो कर रहा है, एंड साथ ही साथ चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स सॉफ्ट पावर, बिकॉज टू बी अ हेजेमन द अदर कंट्रीज शुड ट्रस्ट यू, एंड दैट्स व्हाट बाय दिस पर्टिकुलर थिंग चाइना इज ट्राइंग टू से दैट बॉस, आई एम नॉट हियर टू फाइट unlike US, I'm trying to make a plan which can ensure peace at the regional as well as the global level. Okay, what has been the response of US? तो US अभी काफी ज्यादा शॉक में है. United States has not expressed anything that what it intends, but काफी ज्यादा शॉक में है US, because US को पता भी नहीं था ये सब चीजें चल रही थी. और तो US के लिए फायदा है, सऊदी ईरान ना लड़े तो US को अपना ज्यादा फोकस चाइना पे लगा सकता है, बट बिकॉज दिस डील हैज हैपेंड made by China, तो वो काफी ज्यादा आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. So it remains unclear, however, what this means for United States. ये पता नहीं अभी.
द टाइम विल ओनली से कि व्हाट इज हैपनिंग, बट ये बात तो श्योर है कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज अब यूएस के डोमिनेंस से बाहर निकल के नए पार्टनर्स की तलाश में है, बिकॉज दे नो दैट कि अमेरिका की कमिटमेंट अब काफी ज्यादा कमजोर हो रही है। और जब से अफगानिस्तान हुआ है, जब से यूक्रेन हुआ है, उसके बाद पीपल हैव रियलाइज दैट नाउ वी कैन नॉट नो लॉन्गर बी डिपेंडेंट अपॉन द security cover provided by US. We have to fight for our self survival, and that's why this particular thing is happening. Then four key takeaways जो अगर इसको समराइज करें, this particular is a very important scholar Miller, तो इन्होंने कल लिखा था अपने मैगजीन फॉरेन पॉलिसी में, और उन्होंने बेसिकली इन चीजों को समराइज करके एक ब्यूटीफुल आर्टिकल लिखा है जहां पे he has given four key takeaways in this particular thing. No coming of golden age in Saudi Arabian relations, ऐसा नहीं कि ये नॉर्मलाइज हो चुका है तो heaven will fall in this earth. The relationship has just initiated, so we should not be too much optimistic about this. Only the time will tell how this happens. The Biden administration was left on the sidelines. तो ये बात तो clear है कि Biden administration को पता ही नहीं था ये सब चीजें चल रही है. So that shows कि US की hegemony एक terminal decline की तरफ बढ़ रही है. Similarly, a modest win for China, although the time will say that whether this brokered peace deal works or not, but still it's a huge geopolitical और foreign policy में एक success मान सकते हैं इस चीज को. And a region in flux, that means the Middle East as a region is constantly changing. Lastly, we'll try to understand that what has been the impact on the India. ठीक है, इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है? तो इंडिया के लिए इट्स अ काइंड ऑफ अ विन एज वेल एज इट्स काइंड ऑफ अ लूज सिचुएशन. सो इंडिया ने अभी कोई फॉर्मली रिएक्ट नहीं किया है इस पूरे चीजों को लेके, बट फॉर श्योर पाकिस्तान को इस डील से फायदा हो सकता है. वो हम लोग देखेंगे किस तरीके से. सो देखो, एक जेएनयू के प्रोफेसर हैं और इन्होंने अपने हिंदू के आर्टिकल में लिखा कि while Saudi Iranian normalization is good news, it's a good news because it's anyway Saudi is a good partner to India and Iran is also a good partner to India. We have already built Chabahar port and other things. So there's nothing problem in that. But the problem is that the China being the midwife is a bad news for the South bloc. Because this particular deal, अगर US broker deal होता, India would have been happy. अभी तक हमारा formal announcement हो जाता. But still India is also under that shock कि how did China did this particular whole thing. However, it is opportunity for India to rework its priorities and pay serious attention to regional developments rather than be surprised by the developments, right? So India has to again figure it out how it has to react in this particular chain circumstances. But see, this is the problem. कुछ analysts कहते हैं कि India का जो focus था on I2U2 quadrilateral, that is India, Israel, UAE and Iraq, ठीक है, Israel, US and UAE, which may have taken the spotlight away from its ties with Iran and Saudi Arabia. ठीक है, तो इंडिया का जो पूरा फोकस था I2U2 में पहली, और सेकंड आपको पता है कि इंडिया ने ईरान के साथ सारा ऑयल परचेस बंद कर दिया है आफ्टर द थ्रेट ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस. उसकी वजह से इंडिया ईरान का रिलेशन काफी कमजोर है, और साथ ही साथ I2U2 में फोकस होने की वजह से इंडिया का जो सऊदी की तरफ अटेंशन था वो भी काफी कम देखने को मिल रहा था. और इसी की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि सऊदी के क्राउन प्रिंस जो कि इंडिया में विजिट करने वाले थे वो आए नहीं, और साथ ही साथ जो अभी रिसेंटली राइसीना डायलॉग हुआ है कंडक्टेड बाय ORF, उसमें ईरान के जो हमारे पार्टिसिपेशन था वो भी नहीं हुआ है. सो दैट शोज कि इंडिया का जो रिलेशन है विद ईरान एंड सऊदी अरेबिया वो काफी डिक्लाइन हुआ है. इंडिया हैज एक्सपैंडेड इट्स इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया, but the relationship with Saudi and Iran is facing that test of time. And in this context, this deal is although good, but to some point it can also create a problem for India. Similarly, the global peacemaker, India will also watch this closely to see Beijing is taking its new role as a peacemaker. So that's obviously China has expressed that it's ready to take the global leadership. It will not just sit on the fence. It will try to deliver on the crisis which the world is facing. Finally, we can conclude, by saying that again, the Professor Kumaraswamy, who writes an article, who has written an article in Hindu, professor from JNU, he says that Saudi-Iran normalization is different from the reconciliation. It's just an initiation. We have to wait and watch how the things will figure it out. But in general, if this cold peace be there between Iran and Saudi Arabia, so that's a great news for the South, that particular region. जो proxy wars चल रहे हैं आपके सीरिया, लेबनान और इस पूरे इराक और सारे रीजन में, उससे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है वो आपका रुक सकता है. So everyone hopes that this thing works. And then lastly, if you have to ask for my take on this particular whole issue, so I have concluded in 4 things. Pehla, that eventually हम लोग we are moving towards a multipolar world order. So आपको पता है कि in 1950s at the time of Cold War we were having a bipolar world order. Then
After the collapse of Soviet Union, the world entered into a unipolar world order, and since 2008 global financial crisis, when the rise of China along with other countries have happened, we are moving towards a multipolar world order. So इस multipolar world order में problem क्या है कि multipolar world order is quite unpredictable. You don't know who is going to listen what, who is going to follow what, because everyone thinks that yes, I have many options to explore. और इसीलिए इससे होता क्या है कि काफी ज्यादा chaos हो जाती है. So when you have multipolar world order, but you do not have effective multipolar working institutions like United Nations or any other multilateral bodies, then the whole crisis comes. तो यही हो रहा है आपका आज current geopolitics में, because इस पूरे अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एनालाइज करोगे तो इट्स कंप्लीटली मेस्ड अप. एवरीथिंग इज हैपनिंग वेरी मच रैंडमली एंड हेंस एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू गो फॉर हेजिंग, एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू गो फॉर सेल्फ सर्वाइवल. इसलिए सारे कंट्री अपने ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप को छोड़ के नए फ्रेंडशिप की तरह बढ़ रहे हैं, पुराने एनिमीज को छोड़ के नए एनिमीज बन रहे हैं, बिकॉज हर एक कंट्री को अब अपना सिक्योरिटी खुद देखना है. देयर इज नो यूएस, देयर इज नो यूनाइटेड नेशंस हु इज गोइंग टू हेल्प देम. सो दिस इज माय फर्स्ट टेक. This is a very predictable outcome which the world can expect out of a multipolar world order. The second important take is that collective security को टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है. Already the collective security has been quite out of imagination for everyone. But जब से यूक्रेन में वॉर हुआ है तो collective security has become a dead letter, and now there is no point of United Nations ensuring the security of the any country. Third important takeaway from this is कि since pandemic हर एक कंट्री में आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़े हैं, और जब भी कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ता है दैट मींस स्लो डाउन, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आता है. सो इवन फॉर सऊदी, इवन फॉर ईरान, इवन फॉर इंडिया, इवन फॉर यूएस, हर एक कंट्रीज में ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राइज ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म, xenophobia, all these things are on rise, and hence every country is trying to go for political stability, and that's why they do not want any other challenge which is coming at the borders. And finally, the fourth take from my side is that 2023 is going to be a very important year for the international politics. बहुत ज़्यादा how the conflict in Europe expands, how the issue of Taiwan gets resolved, and how the effect of climate change, how the effect of pandemic and other things figure it out. And that's why we are living in an age which Nehru has at one point of time said in respect to nuclear weapon, that we are living in an age of nervous state of peace, that अभी तो शांति है but पता नहीं है शांति कब तक रहेगी. So these are my 4 takeaways. With that, I hope that इससे काफी ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस आपको मिले और आप इन पर्सपेक्टिव्स को काफी अच्छे से समझ सको, and then you can write a good answer if the question comes in the examination. So I hope you like this lecture. Please like and subscribe to this channel. Thank you. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.